like that. And then I think around 2 years ago, I've started turning into this sort of kind of tantric sadhana or even kriya. Hmm. And I was just curious about why. And I think, as Shruti was saying, I think astrology is a beautiful way to understand your roadmap, your potential, and how with time you actually, different aspects of you mature. So I got into it. Of course, I spoke to you. I've been like following a variety of, sort of podcasts and videos, including yours. So, and this I thought was a great opportunity to learn more. Yeah, beautiful, beautiful. So everybody here is like, into the with the touch of the occult somehow, and everybody here is gotten their way into astrology. Let's say found their way into astrology with through curiosity, you can say, through pain, through some kind of, let's say, looking for a way to transform your own lives. Okay, तो इसी तरीके से we all come into this field, right? Now, the thing is, let's say you have come in, let's say you have come into the touch of this, astrology thing or whatever, tarot, occult, whatever. Okay, but astrology में क्या होता है? The moment you pick up a book, let's say, the moment you start watching any astrological video, okay, anything, the moment you start to, let's say, start naming any planet, ठीक है, and the moment you start to look at your dasha, your own chart, what happens is, like, you have now activated something in yourself. अब वो ना बिना क्वेश्चन करे बैठेगा नहीं, इट विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, ठीक है? दैट क्वेश्चन माइट नॉट बी, लेट्स से, अलाउड, ओके, आप किसी से पूछ नहीं पाओगे, बट इट विल बी इनसाइड यू, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम. सम टाइम यू मे गो टू एनी एस्ट्रोलॉजर, एनी person who is, there. तो उस तरीके से यू विल बी आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. अब जब अगर उन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिलेगा, यू विल स्टार्ट टू क्रिएट सिनेरियोज इन योर हेड कि ये हो सकता है, वो हो सकता है. एंड दैट इज़ द थिंग दैट, उसे बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी का जो एक कर्स भी है, दैट इट कैन एक्चुअली, उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखा है ना कि एक जैसे मोमबत्ती जलती है, तो द वैक्स इज, ऑलवेज मेल्टिंग. सो जस्ट लाइक दैट, if you don't know the correct approach, the correct, let's say, way to handle your astrological knowledge or your curiosity, you can say, then your mind will become a wax, let's say something like wax, and it will start melting. Okay, that is why Swami Vivekananda, the great philosopher and, sadhak, he has told, many people, and अपने writings में उन्होंने बताया है कि एस्ट्रोलॉजी कैन वीकन अ माइंड. ओके, उनका सीधा स्टेटमेंट था. बट ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता था. ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, उनको पता था एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनको भी आती थी वो चीज़, वो विद्या उनके पास थी. बट ही हैज़ टोल्ड अस कि इससे ना माइंड वीक हो जाता है. So this is the reason why it is necessary for us to understand the essence of astrology and how we can use it. Okay, there are some rules and regulation. Obviously, there will always be rules and regulation whenever you walk the path of spirituality, whenever you walk the path of occult. There will be this rules and regulations you have to follow. Sometimes we make mistakes, sometimes we learn from our mistakes, but most of the time, what you should always be, let's say, beware of, careful of, is that these vidya, this knowledge, okay, these wisdom, are not to be used in any way that can hurt anybody, or any, any living thing, any normal, let's say, or not just living thing, any nature, anything. You should not hurt with your knowledge or wisdom, ओके, एनीबॉडी. तो किसी भी तरीके से आपको किसी का भी ऐसे ना बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं किसी तरीके से सोचना है. बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दैट, व्हाट विल हैपन कि आप ना उनके कर्मों को इनवाइट कर लोगे अपने तरफ, ठीक है? सो दिस इज़ वाई एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ वेरी ग्रेट way to understand everything. But if you are not aware of it, if you are not aware how you are using the energy, क्या होगा? लेट्स फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के चार्ट को देख के मन किया किसका हेल्प कर देते, लेट्स से, यू वांट टू हेल्प समबडी, योर रिलेटिव, योर फ्रेंड, एनीबडी. ओके, या फिर अगर आप कंसल्ट कर रहे हो लोगों को, तो यू वांट टू हेल्प योर क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल. नाउ चार्ट आपने खोला, द मोमेंट टू ओपन द चार्ट, ठीक है, उनके चार्ट की चीज़ें आपके ऊपर एकदम ऐसे, जैसे रेन नहीं होता, बारिश होती है, वैसे आपके ऊपर शावर हो जाएगा. ऑल द कर्मास, ऑल द थिंग्स, ऑल द कनेक्शन, ऑल द डाउट्स. अब अगर आपके दिमाग में वो एक आपके पास वो एक, उसे क्या बोलेंगे, एक तरीका है, यू हैव अ मैकेनिज्म ऑफ योर ओन,
जिस तरीके से आप उसको समझ पाओ, उसको हैंडल कर पाओ, उसकी एनर्जी को रोक पाओ एक जगह पे, फिर बाउंड्री क्रिएट करके उसको समझ पाओ, अगर वो है तब ठीक है, तब आप प्रेडिक्शन कर पाओगे, तब आप रेमेडीज़ दे पाओगे, और वो आपको भी हर्ट नहीं करेगा और सामने वाले को भी हर्ट नहीं करेगा किसी भी नेगेटिव वे में. बट if you are not able to do that, if you we are not able to understand the chart, we are not able to, let's say, find connection in the chart, तो हमारे मन में ना एक confusion हो जाता है. Then sometime people what they do, they start to speak from their learnings जो उन्होंने पढ़ा है, चाहे बुक्स से, चाहे किसी वीडियो से, कि इस चार्ट में अगर ऐसा प्लेसमेंट है तो ऐसा हो जाएगा, तो दे जस्ट स्टार्ट सेइंग दोज काइंड्स ऑफ थिंग. तो उसके अगर आप वैसे बोलोगे ना किसी क्लाइंट को या किसी को कि ऐसे करो ऐसे हो जाएगा कहीं से देख करके, नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, नाउ व्हाट विल हैपन कि इट माइट नॉट ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर योर क्लाइंट्स, इट माइट नॉट बी ट्रू फॉर द नेटिव चार्ट दैट यू आर कंसल्टिंग. एंड फिर उसके जो कर्मज हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे कहीं ना कहीं. your emotions may get hurt, your energy may get disturbed. तो इस तरीके से these are some rules and regulations to follow in astrology whenever you are consulting somebody, whenever you are looking at somebody's chart. ठीक है, वो मैं रूल्स रेगुलेशन आज की क्लास में बता दूंगा कुछ कुछ चीज़ें. फिर जैसा कि मैंने बोला कि आज की क्लास में इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है. ओके, एंड बेसिक चार्ट जो होता है, आई विल ड्रॉ अ चार्ट, आई विल ड्रॉ ऑल दी हाउसेस, जो जोडियक साइंस है, 12 साइंस आर देयर, यू नो ऑल द 12 साइंस. ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने बोला, यू ऑल नो द बेसिक्स. बेसिक में मैं बस आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाउसेस, साइंस, ओके, प्लैनेट्स एंड एस्पेक्ट्स, ये तीन चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है. ओके, और बेसिक में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि एवरी प्लानट हैज़ देयर कारका, जैसे सन फादर, मून मदर, मून मिल्क, लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी, मनी, ये सब इतना पता होना चाहिए. मून इज़ इमोशन, सन इज़ ईगो, सन इज़ आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, राइट. तो मर्क्यूरी कम्युनिकेशन, इतना ऐसे ऐसे करके जो कारका हैं वो आपको पता होना चाहिए. अगर ये आपको पता है तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट करें आराम से वी कैन गेट इन टू आवर को जो भी हमारा लेक्चर होगा यहाँ पे, तो आपको सब समझ में आएगा. सो प्लीज़ डू नॉट बी कन्फ्यूज कि मैंने कैसे एस्पेक्ट क्या होता है, या फिर आप पूछ सकते हो. वन मोर थिंग, एनी डाउट यू हैव, चाहे जितना भी सिंपल हो, ठीक है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट, जस्ट आस्क मी. हाँ, जब मैं क्लास में बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देन प्लीज़ डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, आई विल गिव यू टाइम. ठीक है, मैं जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर के बाद आई विल बी कंडक्टिंग अ 10 minutes डाउट सेशन, जहाँ पे आप एक एक करके अपना यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन आता है साइड से, तो आप वहाँ पे करके आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो. बीच में भी अगर कभी कभी मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन आई विल टेल यू कि आप मेरे से पूछ लो. ठीक है, मैं पूछूंगा कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो यू कैन आस्क, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ डो नॉट कट मी जब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एक बार फ्लो बंद हो जाता है तो आई माइट लॉस लूज़ द नॉलेज, फिर वो चीज़ बता नहीं पाऊँगा बाद में. सो प्लीज़, तो यही है. बाकी डाउट्स आप हमेशा पूछते रहना, जो भी डाउट्स आपको होंगे आप अपने नोटबुक में लिख लो. अगर यहाँ नहीं पूछ पा रहे हो आप मेरे से तो, और ग्रुप में आप उसको टाइप करके भेज देना. मेरे पास जैसे ही फ्री टाइम होगा मैं उस डाउट का आंसर दे दूंगा. और अगर आप लोगों में से ही किसी के पास उस डाउट का आंसर होगा तो आप लोग ग्रुप में आराम से डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, give me just 1 minute, I am sharing the screen. Hmm. Can you see this white screen? Yes. Okay. सबको दिख रहा है ना? Yes. Okay, okay. This will be our basic chart.
राइट, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ना मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। एक तो बेसिक पहले भी कवर कर लूँगा थोड़ा सा, उसके बाद टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 हाउसेस, ओके, जिसको हम लोग मूल त्रिकोण बोलते हैं, दीज 3 हाउसेस, ओके। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं, और इट्स नॉट बेसिक, ओके। These 3 houses are very, let's say, important, as I said. If you know the mechanism of how it works, इनके कनेक्शन के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा, then in any chart, even in your own chart, you can find all the solutions to all of your problems, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, ओके, आपके साधना का कुछ इशू हो, एनीथिंग यू कैन फाइंड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक। दिस इज़ ए नॉर्मल चार्ट, ओके। बेसिक जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, दिस विल बी योर एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसिस, ओके। इनको कौन कौन रूल करता है आपको पता ही है। मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, मून, सन, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न एंड जुपिटर, ठीक है। इन हाउसेस को ये जो प्लैनेट से रूल करते हैं, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लीज़ यहाँ पे ना ध्यान दीजिएगा ज़रा। लेट्स से कोई और लगन है, ठीक है, एरीज नहीं है, कोई और है, फॉर एग्जांपल जेमिनाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट मैं अभी यहाँ पे से बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दो ना। तो जो एसेंडेंट है वो जेमिनाई है, तो क्या मार्स तो अब यहाँ पे इस एसेंडेंट का लॉर्ड नहीं रहा, राइट। अब तो एसेंडेंट का लॉर्ड जेमिनाई का मर्क्यूरी बन जाएगा। तो क्या मार्स का फिर भी रिजल्ट हमें दिखने को मिलेगा यहाँ पे? तो मैं बोलूँगा प्रोमिनेंटली नो, बट एक तरीके से लेट्स से अब मार्स तो कहीं ना कहीं चार्ट में होगा, ठीक है। 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह में से कहीं ना कुछ तो होता ही है, राइट। मार्स कहीं ना कहीं तो चार्ट में होगा, किसी भी हाउस में होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 5th हाउस में मार्स है, ठीक है। तो क्या ये फर्स्ट हाउस पे इफ़ेक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? फॉर एग्जांपल अगर इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है या फिर यहीं पे बैठा है, तब तो ऑब्वियसली देगा, ठीक है। लेकिन अगर एसेंडेंट ही गलत, मतलब अलग है, मार्स का एसेंडेंट नहीं है, जेमिनाई का है, जुपिटर का है, तो क्या मार्स फिर भी एसेंडेंट पे काम करेगा कि नहीं करेगा? इसका सिंपल आंसर अगर आपको जानना है तो यही होगा कि कारक तत्व से एक कारक भाव होता है, ठीक है। कारक, कारक का मतलब होता है रीज़न। आप रीज़न समझो, या फिर उसके कारण से, यानी रीज़न से जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट होता है उस चीज़ पे, सिंपल है उस, ओके। सिम्टम, ओके, इफेक्ट। तो यू नो दैट फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी, राइट। फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी। तो बॉडी का जो कारक है वो क्या है? इट विल ऑलवेज बी मार्स। थोड़ा सा रफ है मेरा नोट बनाने का तरीका, आई होप यू डोंट माइंड। तो आप लोग प्लीज़ अपने नोटबुक पे अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो मेरा रफ तरीका है बनाने का, आई कैनॉट हेल्प दिस, आई एम वेरी मेसी इन दिस मैटर। सो एज आई सेड, जो फर्स्ट हाउस है वो आपका बॉडी है। एनी साइन, विच एवर साइन इज़ देयर, ओके, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, एनी साइन इज़ देयर, द फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी। नाउ एनी साइन, तो उसका अलग अलग ग्रह होगा। लेट्स, मैंने बोला ना कि यहाँ पे जेमिनाई है तो मर्क्यूरी इज़ द एसेंडेंट लॉर्ड, बट क्या मार्स वहाँ पे रोल निभाएगा अपना? तो द आंसर इज़ येस। कहाँ से? बॉडी के रूप से। जैसे आपके बॉडी को तो मार्स से रूल कर रहा है, राइट। तो मार्स आपके चार्ट में जहाँ बैठा होगा, तो उस कंडीशन को देखेंगे, क्या मार्स के पास में स्ट्रेंथ है। तो अगर मार्स के पास में स्ट्रेंथ नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्स इज उसके पास में एनर्जी नहीं है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस इंसान का जो बॉडी होगा वो वीक होगा, है ना। या फिर स्टैचर जो होता है, हम लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं
फॉर एग्जांपल किसी का मार्स अगर केतु के साथ में बैठा है किसी भी हाउस में, तो यू कैन प्रेडिक्ट कि इसके बॉडी पे कोई निशान होगा, जलने का, चोट लगने का, एनी मार्क, एनी ब्रूज मार्क विल बी देयर, एनी स्कॉच मार्क विल बी देयर ऑन द बॉडी। ठीक है, अगर नहीं है, इट विल हैपन इन द दशा ऑफ मार्स, इट विल हैपन इन द अंतरदशा ऑफ मार्स। ओके, जस्ट लाइक दैट दीज स्मॉल थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दीज स्मॉल थिंग्स मैटर। उसी तरीके से सेवन्थ हाउस में तो इसका जो नेचुरल हाउस कौन सा है, लिब्रा का है, राइट। कोई भी ग्रह, कोई भी यहाँ पे साइन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये है, स्कॉर्पियो है, ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो बैठा है सेवन्थ हाउस में, तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कौन हो गया, मार्स हो गया। बट क्या वीनस यहाँ पे इफेक्ट करेगा अपना, यस, एज अ कारका इट विल। तो वीनस जहाँ पे बैठा रहेगा इट विल ऑलवेज रूल, ओके, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स जो भी होंगे इसके, मैरिज, पार्टनरशिप जो भी होगा, वीनस। तो वीनस की कंडीशन को देख के हम रिलेशनशिप को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। इसी तरीके से तो ये जो हाउसेस का जो ये जो नॉर्मल एक जो बेसिक हम जानते हैं ना, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो है वो वही है, डिफ़ॉल्ट हमेशा डिफ़ॉल्ट में रहेगा। आप लोग इसको हमेशा याद रखना प्लीज़, डिफ़ॉल्ट हमेशा डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो मार्स हमेशा आपके फर्स्ट हाउस को रूल करेगा ही करेगा, इसीलिए आप वेन एवर यू विल सी समबडी हु इज़ गोइंग टू अ जिम, लेट्स से, and they are working out very with a very hard work and discipline is there, and they have transformed themselves completely, and you will see there is a glow in their body, there is a glow in their face, and suddenly they are earning money as well, they are doing very well in their job, they are doing very well in their relationship, suddenly they are very good, okay, हर तरीके से। why? Because Mars is the lord of 8th house as well। तो कोई भी असेंडेंट हो, एनी असेंडेंट, एनी साइन इज देयर इन द फर्स्ट हाउस, एट्थ हाउस, सब जगह पे मार्स विल ऑलवेज बी द कारका बिहाइंड द फर्स्ट हाउस एंड द एट्थ हाउस। ओके, दिस इज क्लियर, राइट। आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना ईजी है। मार्स विल ऑलवेज बी द कारका फॉर फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस। यस, अगर साइन अलग है फर्स्ट हाउस में, एट्थ हाउस में, तो वहाँ पे हमारा जो एक अप्रोच होगा ना चार्ट को रीड करने का, प्रेडिक्ट करने का, तो हम पहले साइन को ही देखेंगे, फिर मार्स वार्स बाद में देखा जाएगा, पहले साइन देखा जाएगा, फिर अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आ रहा है आपके पास में एंड यू डोंट नो व्हाट देयर असेंडेंट इज़, और वो बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी वीक है, मुझे इतना ताकत नहीं मिल रहा कुछ काम करने का, सो योर रेमेडी टू दैट पर्सन विल बी हनुमान चालीसा, ठीक है, ताकि इसका मार्स इंप्रूव हो जाए। तो योर रेमेडी फॉर दैट पर्सन विल बी कि आप ना रेड कोरल पहनो, जो एक मार्स का पत्थर होता है, जेमस्टोन, ठीक है। आप कभी जाओ किसी पंडित के पास में, उनको अपना हाथ दिखा दो, तो उनको तो आपका लगन नहीं पता, आपका एसेंडेंट नहीं पता क्या है, कि आपके एट्थ हाउस में कौन है, फर्स्ट हाउस में कौन है, बट दे विल सी योर हैंड, अगर उनको पता होगा देन दे विल टेल यू कि आप जाओ हनुमान चालीसा या ऐसे हनुमान मंदिर जाओ, या कोई नरसिंह भगवान का ये करो, मार्शन डेटी या माँ दुर्गा का करो, या फिर वो बोलेंगे आपको कि लाल टीका लगाओ, या फिर ये रेड कोरल का जेमस्टोन पहनो, ठीक है, वेरी इजी। और आपके पहनते ही आपके बॉडी में एनर्जी आ जाएगा, इट विल हैपन। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी को भी ऐसे लेजीनेस फील होता है, कोई आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हो, आपका काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, देन यू जस्ट वेयर रेड कोरल, ठीक है, रिंग फिंगर में, गोल्ड या फिर ब्रॉन्ज में या सिल्वर में भी पहन सकते हैं बहुत लोग। आप उसको पहन के देखो, पहनते ही आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। बट ऑब्वियसली चार्ट कंसिडर करना इंपॉर्टेंट होता है, क्या पता आपका मार्स ऐसे कंडीशन में हो कि आपको वो अगर उसकी एनर्जी बढ़ा दी जाए तो आपको इश्यूज़ क्रिएट कर दे, ठीक है। इसीलिए कभी कभी चार्ट देखना भी इंपॉर्टेंट होता है जेमस्टोन पहनने से पहले। अदर देन दैट, जब भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, फाइनेंस से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, लेट्स से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जुपिटर का पत्थर, ओके, या फिर मर्क्यूरी का पत्थर, या फिर वीनस का भी पत्थर जो होता है, इनको पहनने से सब ठीक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। बट जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सो जस्ट एज आई वाज सेइंग कि डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, फर्स्ट हाउस एंड एट्थ हाउस विल ऑलवेज बी रूल बाय मार्स, चाहे कुछ भी वहाँ बैठा हो, ठीक है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो लोग जिम करते हैं, बॉडी बना लेते हैं, या फिर थोड़ा वेट लॉस कर लेते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, या फिर योगा करते हैं, या फिर वर्कआउट करते, कुछ किसी भी तरीके का फिजिकल कुछ करते हैं, उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं, राइट। आपने देखा होगा, क्यों? क्योंकि वो एट्थ हाउस के ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से बूस्ट करके बैलेंस कर देता है। क्यों? क्योंकि मार्स इज़ द डिफ़ॉल्ट रूलर ऑफ द एट्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस। वेरी सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसको अगर आप समझ जाओगे तो आगे जाके आपको इशू नहीं होगा ना ऐसा चार्ट रीड करने में। अब हम ना यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ में आ गया। तो उसी तरीके से मून फोर्थ हाउस जो होगा ना, मून कहीं भी रहे, फोर्थ हाउस में कुछ भी रहे, मून विल
ऑलवेज रूल योर हाउस, योर फैमिली, योर इमोशंस, योर मदर, ठीक है? वेर एवर मून इज सिटिंग इन योर चार्ट, वेर एवर विच एवर हाउस इज लॉर्ड इज योर मून, ठीक है? मैटर ही नहीं करता, वो हमेशा मदर और इमोशन को आपको शो करेगा। हाँ, किस हाउस में है, किस साइन में है, नाउ इट विल टेल कि सिचुएशन क्या है। नाउ वहाँ से प्रडिक्शन होगी, वहाँ से हमारी रेमेडीज़ होगी। हम उसी को पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। अदरवाइज़ आपकी एस्ट्रोलॉजी अब पूरी कंप्लीट है। अगर आपको हाउसेस पता है, आपको प्लैनेट्स पता है, आपको साइंस पता है, तब आपका कंप्लीट है, आपको बेसिक पूरा क्लियर है। बट कैसे काम करता है, कनेक्शन क्या है, हम लोग अब हेर फेर करके मतलब एसेंडेंट चेंज करेंगे, प्लैनेट यहाँ से वहाँ उठा के बैठा देंगे, फिर क्या होगा इसको समझेंगे, राइट? तो उसी के लिए ऋषि ने, महर्षियों ने क्या करा कि दे हैव डिवाइडेड चार्ट्स, ठीक है? त्रिकोण में, या फिर ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ये मूल त्रिकोण है, इनको बना दिया, ठीक है? कि ये जो ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है, पहले उन्होंने ट्रायंगल बना करके एक डिवाइड कर दिया कि ये फर्स्ट हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, इसको मूल त्रिकोण बोल दिया, राइट? तो इन तीनों का एक अलग वैल्यू होता है, इन तीनों का कुछ अपना अलग होता है। फिर उसी तरीके से पोक्ष वाला है, फिर उसी तरीके से और भी हैं, उपचय हाउसेस हैं, इनके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी हम आज के क्लास में इसी को कवर करेंगे। ऐसे बस सेइंग, तो इनके बारे में पता चल गया। अब इसको स्टडी कैसे करना है, तो महर्षियों ने क्या करा कि ऐसे करके सेगमेंट में, डिवीज़न में बांट दिया, ओके? इन डिवीज़न में पहला जो हम लोग सीखेंगे ये है ट्रायंगल, मूल त्रिकोण, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ, ठीक है? क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट प्लीज़? हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। Yeah, no doubts नो from डाउट्स, me. ओके। हाँ, एनीबॉडी? या निखिल? सर मेरे को डाउट था कि जब भी कार का है, मतलब जैसे आपने कार के बारे में बताया, जी, तो कार का या फिर उस पर्टिकुलर भाव का मालिक, उन दोनों में से सबसे पहले किसको देखना है, प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड एज आई वाज सेइंग कि देखो, अगर आपके पास में चार्ट है पहले किसी का, ठीक है, यू हैव द चार्ट, तो यू हैव द असेंडेंट, ठीक है, यू हैव लेट्स से फोर्थ हाउस आप देख रहे हो, भाव आपका फोर्थ हाउस का है, ठीक है, चौथा भाव आप देख रहे हो, फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉन बैठा है फॉर एग्जाम्पल, ओके? नाउ यू विल बी लुकिंग एट सैटर्न, सैटर्न फोर्थ हाउस का लॉर्ड है उस चार्ट में, ठीक है? सिंपल है, फोर्थ हाउस को आप देख रहे हो तो सैटर्न को देखोगे। बट अगर क्लाइंट या फिर कोई जो नेटिव है वो आपको बोलता है कि सर माई मदर इज़ इल, ठीक है, माई मदर इज़ इल, या फिर मेरी मदर से कुछ इशू हो रहा है, या फिर मेरी इमोशनल जो हेल्थ है वो ठीक कंडीशन में नहीं है, तो नाउ टेल मी बाई इंस्टिंक्ट विच इज़ द फर्स्ट प्लानट यू विल लुक एट, बाई इंस्टिंक्ट विच इज़ द फर्स्ट प्लानट यू विल लुक एट इफ समबडी इज टेलिंग यू कि उनके इमोशंस में कुछ दिक्कत है? इट विल ऑब्वियसली मून। मून, राइट? बिकॉज मून इज ऑलवेज द कारका फॉर इमोशंस, मदर, हाउस, होम, राइट? अब आप क्या करोगे कि यू विल बी एनालाइजिंग द सैटर्न एंड मून टुगेदर, ठीक है? सैटर्न का क्या पोजीशन है, मून का क्या पोजीशन है, आप दोनों का एनालाइज करोगे, फिर दोनों के हिसाब से आप रेमेडी दोगे। यही तो मतलब जो है ना, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बुरे, मतलब जो एक थोड़े से होते हैं ना, जो कच्चे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, दोनों में फ़र्क हो जाता है, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी कि कोई ख़राब होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसी में ना आपको इससे, इसी को मतलब सीजनिंग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में एज अ प्रैक्टिसनर। यही आपका सीजनिंग है कि आपको पता लगाना है कि किस प्लैनेट के कारण से इशू हो रहा है, उसकी रेमेडी दे दूंगा तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये ईजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी। और इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ पढ़ के समझते हैं, प्रैक्टिस कर करके समझते हैं। तो आपने जैसा बोला, तो पहले आप जो उसका इशू है उसके हिसाब से आप कारका को देखोगे, मून को देखोगे, फिर आप भाव को भी पढ़ोगे, ठीक है? दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंस आपके मून को जाएगा, उसके बाद फिर सैटर्न को जाएगा, लेकिन एनालाइज दोनों करोगे। दिस इज हाउ इट इज। ओके सर, थैंक यू। So let's move to the मूल त्रिकोण thing and yes, anybody has doubt? जैसे आप बोले थे कि स्ट्रेस ना और मार्स का, जैसे तो कैसे देखते हैं
आपकी आवाज़ जी कट रही है। हेलो। जी। जी जी सर। सर मैं यस, आस्क। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सुचिस्मिता, आप क्या करो, आप टाइप कर दो, ठीक है, नीचे मैसेज पे। आपके माइक से वॉइस आ रही है, आप माइक बंद करके आप टाइप कर दो क्वेश्चन, ठीक है, मैं देख लूँगा। या फिर आप अपना डाउट रखो, हम लोग बात करते हैं बाद में। सो मूल त्रिकोण, ठीक है, ये जो फर्स्ट ऑफ 5 और 9, 159, ओके, 159 का जो ये हाउस है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पे अटेंशन यहाँ पे। दिस विल बी योर दिस फर्स्ट हाउस, दिस इज 9th हाउस एंड दिस इज 5th हाउस। सो फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी, ठीक है, बॉडी है। उसके बाद फिर आपका माइंड है। हेलो, प्लीज़ कीप योर माइक्स टर्न्ड ऑफ, ओके। सो फर्स्ट हाउस इज़ योर बॉडी, फर्स्ट हाउस इज़ योर माइंड, फर्स्ट हाउस इज़ योर एटीट्यूड, ठीक है। लाइक हाउ इज़ योर एटीट्यूड? आप धीरे बोलते हो, ज़ोर से बोलते हो, बहुत तेज़ बोलते हो, ठीक है, आपके वॉइस में बोल्डनेस है, आपके वॉइस में कुछ हेजिटेशन है, वो सब कुछ आपके फर्स्ट हाउस में पता चल जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हाउ डू यू टेक लाइफ, आप लाइफ को सीरियसली लेते हो, आप लाइफ को मजाक के वे में लेते हो, आप लाइफ को बस ऐसे ही जी रहे हो, सब कुछ आपके फर्स्ट हाउस से पता चलता है ना। अब देखो, आपको जो आइडेंटिटी दी गई है, इसको ध्यान से सुनिएगा, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। द आइडेंटिटी दैट यू हैव बीन गिवन when you was born, let's say when, कि जब आपने जन्म लिया आपको एक आइडेंटिटी दी गई, आपका एक नाम हुआ, आपके एक फैमिली है, एक फैमिली नेम है, दैट इज़ योर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ फर्स्ट हाउस, है ना। फिर वहाँ से आपको एक केयर दिया गया बचपन से, आपके पेरेंट्स ने केयर दिया, ठीक है, एक शिक्षा दी, आपको बड़ा करा गया, दैट इज़ द फर्स्ट हाउस। तो उस तरीके से फर्स्ट हाउस को आप एनालाइज करते हो। इफ़ समबडी इज़ हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इशू, ठीक है, इफ़ समबडी इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ लेट्स से ड्रामा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको चाइल्डहुड में जा करके देखते हैं कि उसको चाइल्डहुड में क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने कैसे ट्रीट किया, बचपन में हो सकता है किसी ने बुली किया, अब्यूज़ किया, एनीथिंग, दैट इज़ फर्स्ट हाउस। अगर मैं अभी आपको एक स्टेटमेंट दूँ, यू वुड नॉट बिलीव कि हाउ मच इट कैन कम ट्रू, इज़ दैट इफ़ फर्स्ट हाउस लॉर्ड, ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी, इसको भी लिखिएगा, वेन एवर आई एम टेलिंग यू दिस सूत्रस, वेन एवर आई एम टेलिंग यू दिस स्टेटमेंट्स, प्लीज़ राइट इट डाउन, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा बोर्ड पे, मैं बोलूँगा बस, आपको सुन के लिखना है, ठीक है। तो वेन एवर आई एम टेलिंग यू समथिंग लाइक दिस, प्लीज़ राइट इट डाउन। सो एज आई वॉज सेइंग, whenever first house lord is sitting in the 8th house, ठीक है, whenever first house lord is sitting in the 8th house of any chart, किसी के भी चार्ट में, ठीक है, and it is aspected by a malefic planet, it is aspected by a malefic planet, especially if it is Saturn or Mars, ठीक है, if it is Saturn or Mars looking at the Lagan Lord which is sitting in the 8th house, the person might, there is a very big probability, there is a very big chance that the child, okay, will get abused in any way, physically, trauma, ठीक है, it is a physical trauma. Now not just physically, अगर physically नहीं हुआ, it's a good thing, but there will be emotional trauma, emotional abuse from the parents, or maybe from the siblings, or maybe from somebody in the house or in the school or in outside anywhere, ठीक है। किस एज में होगा? इट कुड हैपन बिटवीन द एजेस ऑफ 5 से लेकर के 16 और 18 के बीच में, ठीक है, दिस इज़ द एज, 18 तक, 18 के बाद 19 के बाद फिर थिंग्स विल चेंज, ओके, द पर्सन विल बी सेफ नाउ, बट 18 और 19 तक दिस माइट हैपन।
if only if when the Lagna Lord is sitting in the 8th house and it is aspected by a malefic planet, ठीक है, तब होगा. इसको याद रखिएगा. दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट एंड इट हैज़ हैपेंड. ओके, बहुत जगह होता है. तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि फर्स्ट हाउस को कैसे शेप दिया जाता है. ओके, तो फर्स्ट हाउस आपका इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिक की बात नहीं कर रहा. दिस इज़ नॉट अ बेसिक थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. इट्स अ वेरी इंटरमीडिएट और एडवांस थिंग. तो इस तरीके से आपको पता लगाना है. राइट? यस. Sir, is it necessary that the first house lord should be sitting in the eighth house? No, it is not. Even if there is a malefic aspect to the Lagna lord, Yes. that can happen, right? Yes. Like Yes. say for example, Yes. Saturn third aspect to the Lagna Lord, but the Lagna Lord is not sitting in the eighth house. Even then, that Yes, trauma absolutely. can happen. Yes, right? yes, absolutely. Even Yeah. see, even then can happen. Now the probability is, see, now it comes to chances. When the Lagna Lord is sitting in the 8th house, okay, now the chances are 80% if it is aspected by one malefic. ठीक है. If Lagna Lord is sitting in, remember this, इसको भी आप लिखिए please. If Lagna Lord is sitting in the 8th house and it is, please turn off your mic, and it is aspected by two malefics, ठीक है, then there is a 90% chance. ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को. इफ़ लग्न लॉर्ड इज सिटिंग एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी बैठा हुआ है, 8th हाउस के छोड़ करके कहीं भी बैठा हुआ है, एंड इट इज़ एस्पेक्टेड बाय वन मेलेफिक, द चांसेस आर 60 to 70% of getting emotional or physical abuse in the childhood or in the teenage years. Okay, if Lagna Lord is sitting anywhere and it is aspected by two malefics, Mars or Saturn, or any Rahu Ketu influence is there, ठीक है, then the same thing will happen, but with more probability कि it will happen. If let's say Lagna Lord is not aspected by malefic, but Lagna is ascendant is aspected by Saturn and Mars both, ठीक है. If Lagna is aspected by Saturn and Mars, then it can happen. Then the chances are very pretty good, बहुत ज़्यादा. If Lagna is there is a Rahu or Ketu sitting in the Lagna and Lagna is aspected by one malefic, yes, it will happen. Emotional and physical abuse will happen, ठीक है, might happen. If there is no physical abuse, then emotional abuse तो होगा ही होगा, ठीक है, because it cannot go wrong. This is how powerful this statement is. मैंने ये आज इस क्लास में मैंने आज इस क्लास में इसलिए बताया क्योंकि आपको पता चले कि एस्पेक्ट कितना पावरफुल होता है, कितनी चीज़ों को वो करवा सकता है. ठीक है, किसी एक पर्सन के लाइफ में कितनी चीज़ें होती हैं वो दिख जाता है ना. अब हम लोग इसके आगे भी बात करेंगे कि ये चीज़ें जो हुई, अब इसके बाद उस इंसान के साथ जो हुआ, अब वो उसको ओवरकम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे भी. ओके, कुछ लोग नहीं कर पाते ओवरकम. सो एज आई वाज सेइंग, इफ़ देर इज़ एनी हाउस, ठीक है, 1 to 12, okay, 1 to 12 any houses, if there is a aspect of two malefics, ठीक है, two malefics is there the aspect में, तो अब क्या होगा, किसी भी हाउस पे है तो उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट हाउस पे है तो वेट गेन करने में इशू होगा या फिर वेट कुछ ज़्यादा ही होगा, ओवर वेट इशूज़, हेल्थ इश्यूज़ विल बी देयर, यू नो, फैटीग, बोन में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें. ठीक है. अच्छा, अगर किसी और हाउस में, लेट्स से 4th हाउस में मैलिफिक्स बहुत ज़्यादा है, हार्ट इश्यूज़, यू नो, हेल्थ इश्यूज़, ब्लड इशू, इमोशनल एब्यूज़. 10th हाउस में मैलिफिक्स है, करियर में प्रॉब्लम. ठीक है, सिंपल है. मैलिफिक की दृष्टि मैलिफिक के होने से ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट करता है बुरे तरीके से. इसको भी आप लोग नोट डाउन कीजिए प्लीज़. आई एम सेइंग दिस, the aspect of the malefic is more dangerous than malefic sitting there is. ठीक है, मतलब जितना malefic बैठ के नहीं आपको प्रॉब्लम देगा, उतना malefic की दृष्टि देगी जहाँ पे भी वो देख रहा है ना. इसको भी लिख लीजिएगा. अगेन,
ऐड वन मोर स्टेटमेंट टू इट, जुपिटर का प्लेसमेंट, ठीक है, उसके प्लेसमेंट जहाँ भी वो बैठा है, द प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर is let's say the aspect of Jupiter, okay, the aspect of Jupiter is more powerful than the placement of Jupiter जहाँ पे बैठा हुआ है, okay, the house it is sitting in. तो जुपिटर जहाँ पे एस्पेक्ट कर दे वहाँ पे चीज़ें बच जाती हैं, सेवियर है, ठीक है. नाउ वी ऑल हैव हर्ड कि जुपिटर भी मैलिफिक होता है और यू नो जुपिटर भी मैलिफिक होते हैं और जुपिटर भी बेनिफिक होते हैं, हमने ये सुना है, राइट. तो हम ये भी जानते हैं, हम मतलब ये भी बोल सकते हैं कि जुपिटर इज़ ऑल्सो अ सेवियर, ठीक है, मैलिफिक हो या बेनिफिक हो, इसको याद रखिएगा, जुपिटर इज़ ऑलवेज अ सेवियर, ठीक है. जुपिटर इज़ द नेचुरल लॉर्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए अब मूल त्रिकोण का मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंस क्या है, यही है. पहले मैंने फर्स्ट हाउस का बताया, अब देखो नाइन्थ हाउस का देखो. जुपिटर इज़ द नाइन्थ हाउस लॉर्ड, जुपिटर, ठीक है. नेचुरली जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द लक, सेवियर, ठीक है. नाइन्थ हाउस इज लक, सेवियर, दैट इज अ गॉड, डिविनिटी, राइट. इसको याद रखिएगा. कौन है? जुपिटर है, गुरु. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि गुरु जो है ना आपके साधना में, आपके स्पिरिचुअल पाथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए बिकॉज जुपिटर इज द कारका फॉर नाइन्थ हाउस, नेचुरल, ठीक है. तो नाउ लेट्स कम टू दिस टॉपिक. एज आई वाज सेइंग कि नाइन्थ हाउस में कोई भी बैठा हो, एनी साइन इज देयर इन द नाइन्थ हाउस, एनी असेंडेंट यू हैव, जुपिटर इज सिटिंग एनीवेयर, कहीं भी बैठा हो, ठीक है. तो जुपिटर का ये काम ही है कि ही विल ऑलवेज सेव यू फ्रॉम ट्रबल. इन सबको आप लिखते रहिएगा अपने हिसाब से, however way you like to write it down in your notebook. I'm not going to check your notebook or give you marks, okay, so please do not be afraid of that. आपको जैसे लिखना है आप लिखो, बट लिखो इन सब चीज़ों को, बिकॉज these things will these things are very beautiful things. अगर ये आपको पता रहेंगे तो कोई भी चार्ट आप पढ़ोगे आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसकी रेमेडी कहाँ से बनानी है और इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो इसको आप समझो जो मैं बता रहा हूँ. कहीं भी डाउट हो यू कैन आस्क मी. So as I was saying, जी, तो Jupiter is the natural lord of ninth house. Wherever Jupiter is sitting in your chart, it will always save you from troubles. ठीक है. Now, Jupiter aspect is more powerful than the Jupiter's placement itself. ऐसा नहीं कि Jupiter की placement weak है, ना, it is also good. But the aspect of Jupiter saves you from a lot of troubles. ठीक है. Aspect of Jupiter is 5, 7 and 9. Write it down. The aspect of Jupiter is 5, 7 and 9. इसको लिख लीजिए आप वहाँ पे जुपिटर के बाद में, बिकॉज 5th, 7th और 9th. अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में जुपिटर इज सिटिंग इन द 10th हाउस, ओके. नाउ जुपिटर विल बी लुकिंग एट दी सेकेंड हाउस, 5th एस्पेक्ट से. पहला यहाँ पे, ओके, पहला यहाँ पे देख रहे हैं, सेकेंड हाउस पे देख रहे हैं जुपिटर, फिर देखेंगे 4th हाउस पे, राइट, फिर 6th हाउस पे, ओके. ये देखो ये है जुपिटर का एस्पेक्ट 10th हाउस से. तो यहाँ पे जितना जुपिटर एक्टिव नहीं है उतना ज़्यादा इन तीनों घरों में है, इनको समझिएगा, उतना ज़्यादा ना इन तीनों हाउसेस पे ये इफेक्ट करेंगे. अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, कि यहाँ पे ना 4th हाउस में इस इंसान के मार्स से बैठा हुआ है ना, मार्स है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ओके, कि मार्स के 4th हाउस में होने से जो मदर है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या फिर घर में थोड़ा सा इशू हो सकता है, क्योंकि मार्स ट्रबल देता है ना 4th हाउस में, आपको पता होगा, थोड़ा एग्रेसिव देता है वो मोड जो भी हो. बहुत लोगों का मार्स अच्छा भी होता है 4th हाउस में, जैसे इस इंसान का जिसका मैंने चार्ट बनाया, ठीक है, अननोन पर्सन. So Jupiter is looking at the Mars from the 7th aspect. Now Jupiter इसके चार्ट में बुरा हो अच्छा हो does not matter. Jupiter will save the 4th house from the malefic results of Mars. ठीक है. Now there will be no malefic result of Mars in the 4th house. ठीक है. क्यों? क्योंकि Jupiter का एस्पेक्ट है. अब listen to me. Let's say this person comes to you, okay, and they are saying कि मेरे घर में बहुत लड़ाई होती है. मार्स इज द कारका फॉर फाइटिंग, मार्स इज द कारका फॉर लड़ाई झगड़ा,
ठीक है. नाउ दैट पर्सन इज टेलिंग यू कि मेरे घर में बहुत लड़ाई हो रहा है, मैं क्या करूं सर बताइए, आप मुझे रेमेडी दो मैम. ठीक है, व्हाट यू विल डू, यू विल नॉट गिव रेमेडी कि आप हनुमान चालीसा कर लो. नो, वो करोगे तो और ज़्यादा बढ़ सकता है. आप बोलोगे कि हनुमान चालीसा से कैसे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, वो तो बहुत डिविनिटी बहुत अच्छा है, यस है, बट किस एंगल से आप उसको दे रहे हो हनुमान चालीसा, पहले ये मुझे बताओ. अगर आप उसको मार्स सही करने के लिए दे रहे हो तो मत दो, क्योंकि मार्स उसका ट्रबल वहाँ पे जो दे रहा है, मार्स को सही करने के लिए अगर आप दोगे इट माइट नॉट वर्क. ठीक है, माइट नॉट वर्क. हाँ, अगर आप उसको बोल दो कि आप ये हनुमान चालीसा का ये गुरु मंत्र है, हनुमान चालीसा का ये एक श्लोक है, ये चौपाई है, या फिर रामचरितमानस का कोई चौपाई, या फिर सुंदरकांड का कोई पाठ करवा लो, देन इट विल बी गुड, वो बहुत अच्छा काम करेगा. बट हनुमान चालीसा फॉर मार्स, क्योंकि सब लोगों के मन में यही बैठा हुआ है कि हनुमान चालीसा मार्स के लिए है, मंगलवार के दिन का है. इफ़ दैट पर्सन इज गोइंग टू टेम्पल, हनुमान टेम्पल ऑन ट्यूजडेज, ही इज़ ओनली इंक्रीजिंग हिज मार्शियन एबिलिटीज़, और जो लड़ाई झगड़े हैं वो और होंगे, वो उस इंसान को मन करेगा कि वो घर छोड़ के भाग जाए. ठीक है, तो ठीक है, घर छोड़ के अगर वो इंसान चला जाता है तब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट जब तक घर में तब तक देयर विल बी प्रॉब्लम. नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी गिविंग हिम द रेमेडी ऑफ जुपिटर. ठीक है, बिकॉज जुपिटर के रेमेडी करने से जुपिटर का एस्पेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, जुपिटर मार्स को कंट्रोल में कर लेंगे. ये है सिंपल तरीका. ठीक है, इफ़ यू गो टू अ न्यू एस्ट्रोलॉजर हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड बिगिनिंग इन द बिगिनिंग जर्नी, तो वो पहले आपको मार्स की रेमेडी देंगे यहाँ पे. अगर आप बोलोगे ना कि सर मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा, वो आपको बोलेंगे कि मार्स का रेमेडी हनुमान चालीसा या फिर ये कर लो, कुछ भी देंगे वो. तो वो आप जब करोगे तो ट्रबल आपको जल्दी जाएगा नहीं, बहुत इशू होगा फिर भी, इट विल हैपन. ठीक है, इस कंडीशन में, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया है, आप ऐसा मत बोलना कहीं पे जाके कि मैंने बोल दिया हनुमान चालीसा गलत है. नो नो नो, ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू इन दिस रिगार्ड जो आपके स्क्रीन पे है. ठीक है, तो इस रिगार्ड में मार्स की जो रेमेडी है वो उससे बेटर ये होगा कि आप जुपिटर की रेमेडी करवाओ. क्यों? क्योंकि जुपिटर के रेमेडी से द एस्पेक्ट ऑफ द जुपिटर विल गेट स्ट्रांगर, विल गेट मोर बेनिफिशियल. इन दैट वे जुपिटर विल कंट्रोल मार्स. नाउ जुपिटर इज द गुरु ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. ठीक है, ऑल द 6 प्लैनेट्स, नॉट द राहु केतु. राहु केतु के जो गुरु है वो वीनस हैं, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, कैसे राहु केतु को कंट्रोल किया जाता है वीनस के थ्रू, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा. बट जुपिटर इज़ द गुरु फॉर ऑल द प्लैनेट्स. क्या जुपिटर वीनस के गुरु हैं? येस और नो बोथ. ठीक है, इसलिए जुपिटर वीनस में नहीं चलती, उतना नहीं चलता उनका. बट हाँ, जुपिटर जो है ना वीनस को भी कंट्रोल करते हैं. दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ गुड नॉलेज, उसको आप याद रखिएगा. बट दोनों के बीच में चलता है इशू, इसको भी आप लिखिए. तो as I was saying, in this condition you will be increasing the aspect strength of Jupiter, not of Mars, because if you do the remedies of Mars is looking at your 7th house. देखो आप यहाँ पे, आई होप आप सबका बेसिक क्लियर है. ठीक है, यहाँ पे मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ. देखिए अब यहाँ पे मार्स का जो एस्पेक्ट होता है 4, 7 एंड 8, राइट, 4, 7 एंड 8. तो अब देखिएगा यहाँ पे मार्स इज लुकिंग एट दी 7th हाउस, 4th एस्पेक्ट से. ओके, आप अगर काउंट करोगे 1 2 3 4, यस यस एनीबॉडी, यस यस इट इज बीइंग रिकॉर्डेड. या यस निखिल. सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू बिटवीन क्लास, बट सर जैसा अभी आपने बताया कि जब मार्स एज एन बेनिफिशियल नहीं है तो उस पे, तो वहां पर वो दिक्कत दे रहा है, मतलब व्हाटएवर दैट्स आर्टिस्ट. बट अगर अपन जुपिटर को ज्यादा पावरफुल कर देते, वो ऑलरेडी ऐसी जगह में बैठा है जुपिटर जहाँ पे वो डेबिलिटेड है, और तो वो उसका पावरफुल होना क्या उसके करियर में दिक्कत नहीं देगा उसको, बिकॉज तो उसको ज्यादा करियर में अच्छा सॉफ्टवेयर बना देगा, नुकसान कर देगा उसके अंदर. बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था आपका, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जुपिटर. दिस इज़ द सी एस्ट्रोलॉजी में ना यही फ़न है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ों में ना कहीं कहीं पे एक्सटेंशन में वहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया. ओके, तो जुपिटर की रेमेडी कभी आपको बुरा रिजल्ट देगा, मतलब कभी देगा ही नहीं. ओके, आप किसी भी कहीं भी चले जाओ, सब आपको जुपिटर की ही रेमेडी बताएंगे. पता है, जितने भी पंडित या एस्ट्रोलॉजर्स कहीं भी आप जाओ, सबसे पहले आपका चार्ट देखा नहीं, आपको जुपिटर की रेमेडी बता दिया कि ये कर लो. ठीक है, क्यों? क्योंकि जुपिटर की रेमेडी कभी आपको ट्रबल में डाल ही नहीं सकती.
इसीलिए मैंने बोला ना, क्यों, जुपिटर इज़ द गुरु फॉर ऑल दी प्लैनेट्स, ठीक है। आप जब गुरु की रेमेडी करोगे तो कोई ट्रबल होगा ही नहीं, है ना। इस चीज़ को आप समझना। इसीलिए मैंने बोला ना कि मार्स की रेमेडी से बढ़िया आप जुपिटर की रेमेडी कर लो। 10th हाउस में बैठ कर जुपिटर आपको ट्रबल उस तरीके से नहीं देगा। येस, 10th हाउस में जुपिटर इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, ठीक है, इट इज़ ट्रू, लेकिन उसकी रेमेडी करने से 10th हाउस में ट्रबल नहीं होगा। वाई? दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलिफिक एंड बेनिफिक। अब समझ में आया आपको? इफ़ यू डू दी रेमेडीज ऑफ अ मैलिफिक प्लानट, ठीक है, तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। एंड इफ़ इट इज़ इन दी, लेट्स से कि नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में है आपके चार्ट में या फिर उसके प्लेसमेंट के हिसाब से, देन द नेगेटिव इफेक्ट्स माइट राइज। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे 4th हाउस के मार्स के बारे में बताया, राइट, कि यहाँ पे ये प्लेसमेंट जो है ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट लग रहा है देखने में, ठीक है, मार्स 4th हाउस में है तो सब कुछ ठीक है। बट यू नो दैट ना कि मार्स यहाँ पे तो मून का हाउस है, इमोशंस है, घर है, मदर है, ठीक है, और जो भी फैमिली में जो चीज़ें होती हैं ना, रिलेशनशिप चीज़ें हैं। लेकिन आप देखो ना कि मार्स आपके 7th हाउस पे भी देख रहा है, आपके 8th हाउस पे भी देख रहा है, सॉरी 7th हाउस पे देख रहा है, आपके 10th हाउस पे देख रहा है, और आपके 11th हाउस पे देख रहा है, ठीक है। नाउ मार्स इज़ ऑल्सो लुकिंग एट द जुपिटर एज वेल, है ना। अब अगर मार्स की रेमेडी करते हो यहाँ पे, इस केस में अभी बात कर रहे हैं हम लोग, बाद के केस में मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से, अभी इस केस में आप समझो पहले, यहाँ समझ लिया आपने तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मार्स अगर 7th हाउस से अपने जुपिटर को देख रहा है, अगर आप मार्स की रेमेडी कर रहे हो तो आप उसका मेलिफिक बढ़ा दोगे ना, सोच के देखो। अब आप पूछोगे कि सर मेलिफिक कैसे है, आपने क्यों बोला कि मार्स यहाँ पे मेलिफिक है? मैंने इसलिए बोला मेलिफिक है क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आया है उसकी प्रॉब्लम यही है, उसके घर में लड़ाई हो रही है ना। अब आप समझे? तो ये जानना ज़रूरी है कि आपके क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब तक आपका 3-4 साल नहीं हो जाता है एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस किए अच्छे से, रोज़ आप अगर प्रैक्टिस करते हो, तब तक आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे अपने क्लाइंट से कि आपको क्या इशू है। वो खुद आपको इश्यूज़ बताएंगे, तब आप उसके चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। तो आपको उसने बताया कि उनके घर में प्रॉब्लम है, क्यों लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपने सीधा 4th हाउस पकड़ा। अब 4th हाउस की मार्स को देख के आपको पता चला कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यानी कि मार्स से इश्यूज़ हैं, राइट, यानी कि मेलेफिक इफेक्ट दे रहा है वो, तो यानी कि वो 7th हाउस पे भी देगा, ठीक है। शादी के बाद में या शादी के या रिलेशनशिप इसका है, देर विल बी ट्रबल इन द रिलेशनशिप। 10th हाउस पे देख रहा है, देर विल बी ट्रबल इन द 10th हाउस थिंग्स, ओके, देर विल बी ट्रबल इन द 11th हाउस थिंग्स, फ्रेंड्स से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से जुपिटर की चीज़ों को हमने बढ़ाया ताकि मार्स का मेलेफिक कम हो गया, जुपिटर की बेनिफिक चीज़ें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज़ द बेनिफिक प्लानट। अगर आप मून की रेमेडी करते हो, समझना इस चीज़ को, मून की रेमेडी करते हो कोई भी, तो क्या कभी ऐसा होगा कि मून मेलिफिक रिजल्ट देगा? अब मुझे सोच के बताओ, इफ़ आई टेल यू दैट यू कंट्रोल योर इमोशंस, ओके, यू डू नॉट फील बैड अबाउट एवरीथिंग। अगर कोई आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दे, यू बिकम स्टोइक थोड़ा सा, यू बिकम डिसिप्लिन्ड, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, ओके, तो क्या ये बुरी चीज़ है? दैट इज़ द रेमेडी ऑफ मून, बुरा तो नहीं है ना, मून विल ऑलवेज गेट बेटर। सो मून, जुपिटर, ये से जो प्लैनेट्स हैं ना, ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब अगर आप मेरी मानो ना, मैं बताता हूँ एक चीज़, मैं खुद मानता हूँ ये, मैं मून, जुपिटर और वीनस, इन्हीं तीनों को बेनिफिक मानता हूँ पर्सनली। ऐसे तो मरकरी भी कुछ कुछ लोग ऐड कर देते हैं, राइट। मैं इन तीनों को बहुत ज़्यादा बेनिफिक मानता हूँ, और मैं आपको ये लिख के गारंटी देता हूँ कि इफ़ यू डू दी रेमेडीज़ ऑफ मून एंड जुपिटर, अभी मैं वीनस की बात नहीं कर रहा, बस मून और जुपिटर, रेमेडीज़ ऑफ मून एंड जुपिटर विल नेवर गिव यू बैड रिजल्ट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी के रेमेडीज़ करने के पहले आपको चार्ट को सोचना पड़ेगा देख करके कि हाँ सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इस केस में जुपिटर 10th हाउस में है, तो आप जुपिटर के स्टोन को पहन सकते हैं, ठीक है, 10th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस केंद्र होता है, ठीक है। अगर आपका बेसिक पता है आपको, तो ये मालूम होगा कि 1, 4, 7 एंड 10 ये केंद्र है, सेंटर हाउसेस हैं, ठीक है। सेंटर हाउसेस में क्या है कि अगर जुपिटर बैठा है तो इट इज़ ऑलवेज गुड, ये कहा जाता है ना। उसके भी डाउन साइड, उसका भी डाउन साइड है, मैं बताऊंगा बाद में जुपिटर कैसे डाउन साइड देता है सब जगह, डोंट वरी, उसकी अच्छी बातें बुरी बातें भी बताऊंगा मैं। लेकिन सेंटर में अगर जुपिटर है, ठीक है, देन यू कैन वेयर द स्टोन ऑफ जुपिटर, ठीक है, स्टोन यानी कि जेम स्टोन, दैट इज़ येलो सफ़ायर, गोल्ड में, उसके पहनने से जुपिटर विल गेट पॉजिटिव, उसके एस्पेक्ट भी पॉजिटिव हो जाएंगे,
और आपका पूरा का पूरा चार्ट बैलेंस हो जाएगा. इफ़ एनीबडी आप में से किसी के पास भी जुपिटर अगर केंद्र में है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th, किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, यू गो एंड वेयर दी येलो सेफायर इन गोल्ड इन योर इंडेक्स फिंगर. ओके, किसी बृहस्पतिवार के दिन ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग में नहा धो करके पूजा पाठ करके भगवान से विनती करके अच्छे से कुछ पाठ वगैरह करके यू वेयर द स्टोन एंड सी हाउ योर लाइफ चेंजेस इन 3 months, अगर आपका केंद्र में जुपिटर है तो. बाकी और जगह पे तब एनालाइज करना पड़ता है जुपिटर के लिए. सो एज आई वाज सेइंग कि जुपिटर इज द नेचुरल कारकत्व ऑफ दिस 9th हाउस, एंड 9th हाउस इज योर गुरु, 9th हाउस इज योर लक, 9th हाउस इज योर सेवियर, divinity, divine help. Wherever Jupiter is sitting, his aspect will always save you. So this is how the Mool Trikon works. Okay, Mool Trikon is this. This is very divine. First house is you, yourself, your body, your mind, your soul, whatever there is, the identity that you have been given from the society, from your family. 9th house is divine help, divine Jupiter Guru, okay, luck, whatever you want to call it. Now 5th house. 5th house is your punya. 5th house is a lot of things, but I call 5th house punya, and it is punya actually. ठीक है, आपने जो भी पुण्य कर्म किए पास्ट लाइफ में अपने इस जन्म में, दैट इज़ इन दी 5th हाउस. ठीक है, 5th हाउस का पोजीशन, प्लैनेट का पोजीशन शो करता है आपका इस लाइफ में पर्पस क्या है. बहुत लोग पूछते हैं ना कि व्हाट इज़ माई पर्पस. आप देखो कि आपके 5th हाउस का प्लैनेट मतलब लॉर्ड कौन है. फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में सन इज़ द लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस. ठीक है, तो नेचुरली हर किसी इंसान का क्या पर्पस होता है कि वो अपने प्रोजनी को आगे बढ़ाए, अपने लिनियज को आगे बढ़ाए, राइट, टू से कंटिन्यू द लिनियज, कंटिन्यू द टीचिंग्स ऑफ द लिनियज, जो भी है. ये तो नेचुरल एक ह्यूमन का बनाया गया ना, ह्यूमन सोसाइटी में. इसलिए 5th हाउस में सन है, सूर्य है. सन इज़ दी लिनियज. ठीक है, सन इज़ दी ऑल्सो ईगो, सोल, द कारकत्व ऑफ सोल. ठीक है, तो 5th हाउस में क्या है कि आपको पता है ना कि लियो के साइन में ही माघा नक्षत्र आता है, जो कि पितृदेव से जुड़ा हुआ है, पितरों से जुड़ा हुआ. पितृ कौन हो गए? आपके लिनियज हो गए, पिछले जन्म और इस जन्म के लिनियज हो गए. तो उसको आप कंटिन्यू कर रहे हो 5th हाउस से. डू यू गेट द पॉइंट नाउ? 5th हाउस में अगर मेलेफिक है, 5th हाउस से मेलेफिक जुड़ा हुआ है, देन देयर विल बी पितृदोष इन दी चार्ट. पितृदोष के होने से क्या होता है, लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, रिलेशनशिप में, मनी इशू, मतलब फाइनेंशियस में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में, सब जगह से आता है. जब कोई इंसान स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए साधना करता है, तांत्रिक साधना या फिर नॉर्मल साधना, किसी भी तरीके का साधना में आता है, दीक्षा मिलता है उसको ना गुरु मंत्र दिया जाता है. ठीक है, गुरु मंत्र देने से क्या होता है, गुरु मंत्र जब उसको दीक्षा में दिया जाता है तो गुरु मंत्र को वो चैंट करता है, तब उस साधना से उसके पितृदोष, उसके जो भी दोष है कुंडली में, जो भी दोष वो लेकर के आया है इस जन्म में, दैट इज़ नेगेटेड. सारे दोष खत्म हो जाते हैं. एक बार में नहीं होता, साधना करनी पड़ती है, कुछ सालों में होता है, किसी किसी का कुछ महीनों में होता है. तो इस तरीके से यू नेगेट ऑल दोज दोषास. दैट इज़ वाई दीक्षा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु मंत्र इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इन द पाथ ऑफ साधना. इसी तरीके से चार्ट का ये इंपॉर्टेंस है, बिकॉज चार्ट विल शो द पोटेंशियल. ठीक है, अब आप उस पोटेंशियल पे काम करते हो या नहीं करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फ्री विल है. ओके, ऑल ऑफ यू मे हैव दिस क्वेश्चन. ठीक है, कि क्या हमारे पास फ्री विल है या फिर सब कुछ डेस्टिनी है. तो द थिंग इज यू हैव द पोटेंशियल, इट कैन बी सीन थ्रू योर चार्ट, एंड अगर आप उस पर काम करोगे कि नहीं करोगे, दैट इज़ योर फ्री विल. ठीक है, आपको रास्ता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, वो आपके गुरुओं का काम है, वो आपके डिविनिटी का काम है. आप कितना फेथ पे, मतलब कितना सरेंडर कर पाते हो, जितना आप सरेंडर करोगे उतना आपको रास्ता दिखाया जाएगा गुरुओं के थ्रू और डिविनिटी के थ्रू. दैट इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स. ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. लाइफ इज़ वेरी इजी इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्टर 1, 5 एंड 9. 1 हो गए आपका जन्म, आपके आइडेंटिफिकेशन, आपका बर्थ, सब कुछ. ठीक है, योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग अबाउट यू, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एवरीथिंग, इमोशनल बॉडी, सब फर्स्ट हाउस में. 5th हाउस इज़ योर लिनियज. आप पिछले जन्म से और इस जन्म में क्या लेकर के आ रहे हो, आपके पास क्या चीज़ें हैं, स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स हैं, आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो भी कुछ है, जो भी आपने सीखा, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, वो सब कुछ 5th हाउस है. ठीक है, 9th हाउस इज़ द डिवाइन हेल्प, 9th हाउस इज़ द गाइडेंस, 9th हाउस इज़ द मार्गदर्शन. ठीक है, दैट इज़ नीडेड फॉर यू. ओके, सो दिस इज़ द मूल त्रिकोण एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना कुछ हो ही नहीं पाता. मूल त्रिकोण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इतना समझ में आ गया. बहुत ईजी था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना. तो मूल त्रिकोण में 5th हाउस का जो नेचुरल जो है वो सन है,
सन वेर एवर इट इज सिटिंग इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द 5th हाउस, आपकी लिनियज को, आपके फादर को, ठीक है। तो और सन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट योर दोशाज एज वेल, पितृदोषा। सन विल ऑलवेज रिप्रेजेंट कि आपका ईगो कहाँ पे है आपके पास में, यू नो दैट सेल्फ आइडेंटिटी जो एक होता है ना, आइडेंटिटी आप जो बना रहे हो, सेल्फ जो आप खुद के लिए कर रहे हो, खुद का पहचान बनाना, दैट इज़ ऑल्सो सन, ठीक है। आपका ग्रेविटी कितना है, मैंने मातंगी एक वीडियो डाला है, महाविद्या मातंगी, ओके। तो मदर मातंगी का वीडियो आप देखना उसको, उसमें मैंने सन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे ग्रेविटेशनल आपको बनाते हैं। सन जिसका वीक होता है ना, उसमें ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है, तो उसके आसपास कुछ होगा ही नहीं। राजा के आप आसपास देखो, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, कितने सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, गुरु भी होता है उनके बगल में। आप कितने भी राजाओं को देखा होगा आपने, वो राजा है क्योंकि राजा सन है, राजा के पास ग्रेविटी है, ठीक है। तो राजा के अब आप सोलर सिस्टम में जाके देखो, जो सन प्लैनेट है उसके चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि सूर्य है, सूर्य इज़ द किंग, सन इज़ द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ग्रेविटी इज़ योर 5th हाउस। आपका 5th हाउस अगर वीक है, दैट मीन्स योर सन इज़ वीक और द 5th हाउस लॉर्ड इज़ वीक, ठीक है। तब आपका ग्रेविटी कम पड़ जाएगा, तब आप कहीं भी जाओगे लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तब आप कहीं भी जाओगे लोग आपको मानेंगे नहीं आपकी बात को, आपका कुछ वर्चस्व नहीं बन पाएगा। बट इफ़ योर 5th हाउस इज़ वेरी स्ट्रांग, आपके पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, डिग्रीज पढ़ाई वढ़ाई करके बहुत हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन है, 5th हाउस से देखा जाएगा वो। अगर वो आपके पास है तो लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे अच्छा इसके पास डिग्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा, इसने पढ़ाई लिखाई करी है, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट आपके पास स्किल है, आपने अपने स्किल से भी अपना नाम बना लिया, कुछ कर लिया, ठीक है, देन पीपल विल रिस्पेक्ट यू। अब आपने क्या करा कि कुछ नहीं करा फिर भी, लेकिन आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोले नहीं बोले, इसका मतलब है कि आपके 5th हाउस में केतु का कनेक्शन है, आपके 5th हाउस में स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यू हैव अ स्पिरिचुअल माइंडसेट, स्पिरिचुअल वो है, मटेरियल नहीं है। फिर आपका क्या होगा कि 5th हाउस में आपने क्या करा कि पिछले पिछले जन्मों का पुण्य जो है आप लेकर के आ रहे हो, वो एक्टिवेट हो रहा, ठीक है। आपके पुण्य कर्मों से दूसरों की हेल्प हो रही है, डिवाइन हेल्प आप दूसरों को दे रहे हो। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में 5th हाउस का कनेक्शन यही है। अगर आपके 5th हाउस से केतु, 8th हाउस या सन, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं ना कनेक्टेड है, या फिर जुपिटर, ऐसे प्लैनेट्स कनेक्टेड है 5th हाउस से आपके, तो फिर ये रिजल्ट शो करता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या स्पिरिचुअल कामों के थ्रू आप दूसरों की हेल्प करोगे, है ना। तो इस तरीके से 5th हाउस का भी एक अपना रोल है, 9th हाउस का भी अपना एक रोल है, 1st हाउस का भी अपना एक रोल है। इन तीनों के कनेक्शन से मूल त्रिकोण बनता है, जो एक अपवर्ड ट्रायंगल होता है। अपवर्ड ट्रायंगल इज द डोनेशन, मतलब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लोइंग अपवर्ड, ठीक है, आपकी लाइफ, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल के क्लास में ये देखो मार्स का मैंने यहाँ पे एस्पेक्ट लिखा था 4, 7 और 8, ठीक है। सन के एस्पेक्ट में बस आप 7th एस्पेक्ट ही डालो, सन के एस्पेक्ट में 7th एस्पेक्ट ही, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था मार्स का ये एस्पेक्ट आप लिख लेना 4, 7 और 8, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई वाज सेइंग कि यस, आपका कल के क्लास में मैं आपको जुपिटर और केतु के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। जुपिटर, केतु और कुछ कनेक्शंस के बारे में कि कैसे आप रेडिट कर सकते हो कि आप पास्ट लाइफ से क्या लेकर के आ रहे हो और कहाँ पे इस लाइफ में क्या क्या आपको अचीव करना है, दैट। फिर और जो हाउसेस हैं, ठीक है, जैसे आज मैंने मूल त्रिकोण बताया, कल और कुछ बताऊंगा, कल अलग डिवीज़न बताऊंगा। तो यही है, ओके। चलिए, अब आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ एक एक करके अगर है तो पूछ लीजिए आप मेरे से। नहीं, थैंक यू सो मच। अभी मुझे ड्रॉप करना है, बट थैंक यू, दिस वाज ओके अमेजिंग। नीरजा, See ओके, you tomorrow. Bye bye. ओके बाय, ओके सुचिस्मिता सर आई हैव 2 क्वेश्चन। जी। जैसे मूल त्रिकोण अगर कनेक्टेड हो जाए ईच अदर, लाइक 5th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठ जाए, फॉर एग्जांपल सैटर्न इज 5th हाउस लॉर्ड एंड सैटर्न 9th हाउस, तो कैसा रिजल्ट देगा? सैटर्न इज 5th हाउस लॉर्ड, राइट? जी और वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं, जी। और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है? वो भी 5th हाउस में है। नहीं अच्छा, लॉर्ड एक्सचेंज नहीं हो रहा, ओके। नहीं। तो अंडरस्टैंड वन फैक्टर, इफ 1st हाउस 5th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस, ठीक है, इफ 1st हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 9th हाउस, देन यू विल ऑलवेज हैव डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन हेल्प, ठीक है। आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। ऑल यू हैव टू डू इज लिसन टू योर इंट्यूशन।
आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करोगे तभी आपको चोट लगेगी, ठीक है. सो इट्स अ गुड प्लेसमेंट, इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट. ओके. वन मोर इज, जैसे आप बोले कि 8th हाउस केतु का कनेक्शन हो या 5th हाउस में, तो वो एस्ट्रोलॉजी और समथिंग ऑकल रिलेटेड चीज़ों पे जी. जाएगा. तो जैसे फर्स्ट हाउस में केतु बैठ गया लग्न में, और 8th हाउस का जो मीन्स फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस बनता है. तो और फर्स्ट हाउस में केतु बैठ गया, तो वो केतु और लग्न के साथ कुछ कनेक्शन होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल. सी, केतु इज द नेचुरल रूलर ऑफ 8th हाउस. राइट दिस डाउन, ठीक है. केतु इज द नेचुरल रूलर ऑफ 8th हाउस. सिंपल है, ओके. इसको आप समझ जाओ. राहु इज द नेचुरल रूलर ऑफ एक्वेरियस. अब आप बोलोगे कि अगर केतु 8th हाउस का रूलर है तो राहु तो 2nd हाउस का होना चाहिए. आई विल टेल यू नो, नॉट नेसेसरीली, ठीक है. राहु रूल्स एक्वेरियस. सारे साइंस में जो 1 से लेके 12 तक में जो साइन है, आउट ऑफ ऑल द साइंस राहु रूल्स एक्वेरियस बिकॉज देर इज शतभिषा नक्षत्र. शतभिषा नक्षत्र राहु का फेवरेट है. ऐसे तो आद्रा भी है, तो आद्रा इज इन दी जेमिनाई, ठीक है. तो राहु इज ऑल्सो रूलिंग जेमिनाई नक्षत्र. राहु इज ऑल्सो रूलिंग दी शतभिषा नक्षत्र विच इज इन दी एक्वेरियस, ठीक है. तो राहु के जो नक्षत्र जहाँ जहाँ पे पड़ते हैं, जिस जिस साइन में, वो राहु रूल करता है. बट आउट ऑफ ऑल द नक्षत्र दैट राहु रूल्स, आउट ऑफ ऑल द 3 नक्षत्र दैट राहु रूल, हिज फेवरेट नक्षत्र इज शतभिषा. दैट्स वाई राहु इज कनेक्टेड टू एक्वेरियस ऑल द टाइम, ठीक है. राहु अभी एक्वेरियस में है, ट्रांजिट में, ठीक है. वो अभी बहुत बेस्ट प्लेस में है अपने. उसी तरीके से केतु इज ऑलवेज रूलिंग द 8th हाउस, स्कॉर्पियो. अब यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं अभी नक्षत्र का कनेक्शन. सिंपल आप समझो, 8th हाउस इज रिलेटेड टू मिस्टिकल आर्ट एंड ऑकल्ट. केतु इज मास्टर इन इट, ठीक है. तो वेन एवर केतु इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू 8th हाउस समहाउ. यू विल ऑलवेज बी इन टू दी ऑकल्ट एंड इन टू दिस थिंग्स, ओके. और वहाँ पे लगन लॉर्ड का भी आपका संबंध बन रहा है तब तो, और है ना. यस, मीन्स कि जैसे लग्न का लॉर्ड जो है वो तो साथ में नहीं बैठ रहा है, बट कनेक्शन है ना, लग्न फिर भी जी. कनेक्शन है, क्योंकि केतु आपके लेट्स से कौन से साइन में है, असेंडेंट लिब्रा लिब्रा, राइट. तो टॉरस होगा 8th हाउस में, है ना. जी. तो उस तरीके से आप देख लो, 8th हाउस का लॉर्ड वीनस, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीनस, तो केतु का डिस्पोजिटर कौन हो गया, वीनस हो गया. वीनस तो आपके 8th हाउस को भी रूल कर रहा है, तो वीनस इज कनेक्टेड टू केतु इस तरीके से, ठीक है. और कोई भी प्लैनेट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे ना कि केतु मेरा स्कॉर्पियो में है, तो क्या केतु मेरे एरीज से कनेक्टेड है, यस, ठीक है. इसको आप लोग याद रखिएगा. पूरा का पूरा रिजल्ट केतु वहाँ पे नहीं देगा वैसा, बट कनेक्शन है. चलिए दूसरा क्वेश्चन निखिल. ओके, हाय. मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था सर, जब भी जैसे आपने बताया कि फर्स्ट और जब भी एथ होता है और उससे मेलेफिक एस्पेक्ट्स आ जाए, तो वो ड्रामेटिक या फिर कुछ भी ऐसी चीज देता है रिलेटिव को. बट द थिंग इज कि अगर अपन इसका उल्टा करते हैं, इज इट एथ लॉर्ड इन द फर्स्ट, तो क्या ये पर्सनालिटी पे रीजन उसको बुलिश बना देगा कि वो किसी और को तंग करेगा उसी वे में? यस, इट कैन हैपन, बट नॉट नेसेसरीली कि आप अगर 8th को फर्स्ट में कर दो तभी ये होगा, ठीक है. हो सकता है कि इस इंसान का जुपिटर अच्छा नहीं हो, इस इंसान में देखो एक चीज़ बताता हूँ. कोई इंसान बुरा है, ठीक है, आप उसको उसके चार्ट से देख करके बहुत रेयरली ऐसा होता है कि पता लगा सकते हो कि ये इंसान बहुत बुरा इंसान है, ठीक है. उसका कुछ अलग टेक्निक होता है. तो अगर वो इंसान किसी और पे मेंटली, हाँ, इमोशनली मैनिपुलेटर्स को आप पहचान सकते हो चार्ट को देख के. उसका सिंपल मैं आपको बताऊंगा आगे जा करके कैसे. बट अगर आपको ये देखना है कि क्या ये फिजिकली किसी को ट्रबल देगा, इट इज़ अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. वेरी रेयरली यू कैन सी दैट इन द चार्ट. लेकिन हाँ, 8th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाएगा तो येस, द थिंग्स लाइक अब्यूज़ वाला चीज़ हो सकता है, ठीक है. द सेम wound, traumatic experience, physical, emotional, it can happen. 8th हाउस इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है. 8th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन द 8th हाउस, सेम थिंग.
Do you get it? Any doubt? No, no, no. Yes, Tarun, please. Sir, let's say if there is no benefic aspect and there are two malefic aspects, sir, then you have said that remedies regarding with malefics will increase both positives and negatives. So how we will deal with that? If there are two malefic aspects on one house with no benefic. Okay, beautiful question. Now you will do the remedy of the house. Okay, जिस पे aspect है. For example, two malefic aspect is there on the sign of Cancer. ठीक है. Now you will be doing the remedy of moon. Do you get my point now? Sir, please repeat. I am telling you, for example, if two malefic aspect is on the sign of Cancer, okay, जहाँ पे आपका sign Cancer है. Yes, sir. Now you will be doing the remedy of Cancer, which is a remedy of Lord of the Cancer, which is moon. Okay, first Fine, thing. sir. When you do the remedy of moon, you will get the benefic results. Now one more thing, Tarun ji, इसको समझिएगा आप लोग सब कोई. If there is one or more, let's say more than one, like two malefic aspecting one sign, and if you are doing the remedy of that sign's lord, तो सिंपल जेमस्टोन पहनने से, सिंपल कुछ ऐसा रेमेडी करने से नहीं होगा. यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ठीक है, बिकॉज टू मेलेफिक इज देयर, पावरफुल है ना, मार्स सैटर्न या कोई ऐसे कुछ होगा तभी तो. नाउ यू विल हैव टू डू, लेट्स फॉर एग्जांपल अगर मून है, नाउ यू विल हैव टू डू महामृत्युंजय मंत्र जाप और वर्शिपिंग अ शिवलिंग विथ महामृत्युंजय मंत्र. ठीक है, these kinds of remedies now will you have to do. वो भी रोज करना पड़ेगा सुबह बैठ करके for a certain amount of time to negate all the negative effects of the malefics. ठीक है, कब ये करना है? जब आपके कैंसर पे दो malefic देख रहे हो. ठीक है, और भी जगह पे महामृत्युंजय मंत्र का रेमेडीज मैं बताऊंगा, डोंट वरी. बट अभी आपको समझ में आ गया ना. वर्गो पे अगर दो मेलेफिक देख रहे हैं, किसी हाउस में देख रहा है और उस हाउस में वर्गो बैठा है, आप ना मर्क्यूरी का रेमेडी करोगे, है ना, मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करोगे ताकि उस हाउस को पावर मिले, ताकि उस हाउस में स्ट्रेंथ आए कि वो उन दोनों मेलेफिक्स को वो झेल पाए, अपोजिशन हो पाए. डू यू गेट दिस? समझ में आ गया? यस सर. ओके, और भी बहुत टेक्निक्स हैं, आगे जाके बताएंगे, बट दिस इज द फर्स्ट टेक्निक यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू डू दिस. ओके ओके श्रुति, योर क्वेश्चन प्लीज. Sir, if we have to see the lineage of a person, do we have to check only the fifth house? Yes, lineage you have to see, yes, but you will be able to see the karmic lineage. Okay, from where the person is coming from, past life things you can see that. Okay, कि So, fourth yes. house doesn't apply here? No, not necessarily. No. If you want to see the lineage, you see the fifth house first. Fourth house, yes, you can. Okay. You can also see the fourth house. But fourth house will tell you the situation of the house the person has been, grown. Let's say, for example, a mother, emotional जो भी चीज़ें हैं घर में, okay, mother, father, parent, okay, childhood कैसा था, and what is he having, घर कैसा है, सुंदर है, अच्छा नहीं है, घर है कि नहीं है, गाड़ियाँ हैं कि नहीं है, ये सब कुछ. Fourth house is that only, and fourth house is emotional fulfillment. If you want to see lineage, you will have to look at the fifth house. If you want to see ancestors, you have to look at the fifth house. If you want to see karmic things, you have to look at the fifth house. ठीक है, पुण्य, ये सब skill वगैरह. Fourth house is something else. Yes, Madhavi, Okay, please sir. ask a question. So my question is about functional planets. Like we check the functional malefic and benefic nature of the planets, right? So when you are talking about Jupiter, based upon its rulership, like if it's ruling third house, sixth or 11th house, will the aspect affect changes? Will it remain positive or will it become negative based upon the house it is ruling? No, it will always be positive because it is the natural ruler of 9th and 12th. Okay, first. Oh. And second thing is Jupiter is a benefic planet. अगर यहाँ पे if you have been talking about Mars, for example, Mars is the ruler of first and 8th house, but Mars in the chart is the ruler of, let's say, 8th house or 6th house, for example.
Now Mars's aspect, is it good or bad? Okay, now there will be bad things, negative things there might be. ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्स इज अ मैलेफिक प्लैनेट पहले तो, okay. Okay. And secondly, Mars is sitting in the 6th house, so obviously it will be looking at the first house, it will be looking at the 9th house. So Mars's aspect will be negative to an extent. Why? Because it is a malefic planet, it is sitting in the 6th house, and it does not have any benefic aspect. तब जा करके, if there is a benefic aspect on Mars, let's say Jupiter is looking at Mars, okay, तब Mars's aspect will also become benefic at some point. ठीक है, Okay. समझ में आया कनेक्शन? देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आपने समझ लिया ना बहुत इजी हो जाएगा, है ना? ठीक है, Thank you. हाँ. एनी मोर डाउट्स एनीबॉडी? चलिए, तो सर या सर अगर 6th हाउस में मार्स बैठा है जी, और एस्पेक्ट दे रहा है फर्स्ट हाउस को, तो किस टाइप का लाइक प्रॉब्लम देगा वो? डिपेंड्स अपॉन योर मार्स. अगर मार्स आपका पॉजिटिवली प्लेस्ड है, लेट्स से मार्स इज सिटिंग इन द 6th हाउस और डेबिलिटेटेड नहीं है, कॉम्बस्टेड नहीं है, किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है, नॉर्मल डायरेक्ट प्लैनेट बैठा है मार्स, तो फर्स्ट हाउस पे आपको इट विल मेक यू अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल वांट टू टेक एक्शंस. ऑलवेज आपको एक्शन लेने में बहुत मज़ा आएगा. जैसे लेट्स से यू हैव अ आइडिया, एनी आइडिया, यू वांट टू टेक एक्शन राइट नाउ, क्योंकि मार्स आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है. बट वुड यू बी एबल टू ब्रिंग आउट, लेट्स से उसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन इन दैट एक्शन? दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर मार्स. ठीक है, या फिर दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर सैटर्न, दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लगन लॉर्ड. ओके, सो मार्स अपना काम करेगा, इट विल गिव यू बूस्ट, इट विल गिव यू एनर्जी टू डू समथिंग. वही अगर मार्स केतु के साथ बैठा हो 6th हाउस में और फिर फर्स्ट को देख रहा हो, तब फिर आप काम स्टार्ट करोगे, बट काम को कंप्लीट करने में आपको बहुत ज़्यादा आलस आएगा, क्योंकि केतु बैठा है ना, केतु को काम करना पसंद नहीं है और मार्स काम करवाएगा. तो ऐसे लोगों का रूटीन नहीं होता 6th हाउस में मार्स केतु या 3rd हाउस में मार्स केतु चार्ट में कहीं भी हो, ऐसे लोग ना रूटीन फॉलो करना नहीं पसंद करते. बट वो जो भी करते हैं उनका काम हो जाता है, बिकॉज मार्स इज़ मंगल ऑस्पिशियस. केतु भी मंगल है, क्योंकि केतु इज़ लॉर्ड गणेशा. पता है ना आपको, लॉर्ड गणेशा इज द कंट्रोल्स केतु, तो केतु इज ऑल्सो मंगल. सो योर क्वेश्चन वाज कि मार्स अगर फर्स्ट हाउस पे देखे 6th से, तो नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करता है. ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ऐसे करके होगा. ओके, मार्स अगर सर कैंसर में अगर बैठा है, अगर आपका 6th जी हाउस में लेट्स से कैंसर है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर है 6th हाउस में और उसमें मार्स बैठा है, तब तो ट्रबल देगा ना, इमोशनली ट्रबल देगा, इस तरीके से. जी तो ऐसे ही है. धीरे धीरे अभी सब समझ में आएगा, डोंट वरी. ये तो अभी पहला क्लास ही था ना, इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, आप जो भी नोट्स बनाए हैं आप उसको याद रखना. और लेक्चर जो है मैं 48 आवर्स के अंदर अपलोड कर पाऊँगा, ठीक है, नॉट राइट अवे, बिकॉज टाइम लगता है थोड़ा सा. तो 48 आवर्स के अंदर मैं अपलोड करूँगा. आई होप यू गाइज डोंट माइंड. और कल भी क्लास है, और हम लोग ऐसी क्लासेस करेंगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. 2 दिन मैंने वीकेंड का डाला, ताकि आप लोग भी आराम से क्लास ज्वाइन कर सको. ठीक है, और 2 ये दिन होंगे, थर्सडे और फ्राइडेज. तो ये 4 दिन क्लास चलेगा. ओके, तो कल मिलते हैं हम लोग. बहुत अच्छा क्लास था आज का. आई होप यू लाइक इट. सो सी यू टुमारो. चलिए, गुड Thank नाइट. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night. थैंक यू.